Hello students, welcome you all to our sixth chapter, that is similarity of triangles. Students, in our maths section we are starting with our sixth chapter, which is of geometry. The name of the chapter is similarity of triangles. Okay, so let us start with our first session of this chapter. As this session consists of all the theory section, so I have made this PPT for explaining the theory and some theorems. Okay, in the next session, in the next video, I will come live and I will teach the sums. Okay, students. Our today's first topic is similar figures. Students, what do you mean by similar figures? Two figures having the same shape but not necessarily the same size are called similar figures. If two figures have the same shape, अगर दो figures के shape same है, size भले same नहीं हो, if the figures are having same shape, then they are called similar figures. As you can see in the diagram कि आपके पास एक square box एक छोटा है और एक square box बड़ा है, तो they both are squares, भले उनका size अलग अलग है, but they have same shape. Okay, so they are called similar figures. फॉर एग्जाम्पल ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि सारे सर्कल कैसे सर्कुलर होते हैं, भले कोई छोटा सर्कल कम रेडियस वाला कोई बड़ा रेडियस वाला, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स. सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स. ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स मीन्स दे हैव थ्री साइड्स शेप ऑफ सेम मेजर, तीनों साइड इसके सेम मेजर के होते हैं. इस तरह से जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल ऐसा जिसके तीनों साइड 3-3 सेंटीमीटर के, और एक ट्राइंगल ऐसा जिसके तीनों साइड 5-5 सेंटीमीटर के हैं. ओके, देन ऑल्सो दे बोथ आर सिमिलर फिगर्स. वाई? बिकॉज दे आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, दे हैव सेम शेप. सो वंस अगेन, व्हाट यू मीन बाय सिमिलर फिगर्स? फिगर्स हैविंग द सेम शेप. दे मे हैव डिफरेंट साइज बट शेप शुड बी सेम. लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स. ओके स्टूडेंट्स, as you can see in this pic, the two triangles have different measures. Okay, but their shapes are same. इनके shapes देखो same है, एक जैसे shape है इनके. Triangle ABC and triangle DEF have the similar shape. Their measurements are अलग, their size is different, so we can call them as similar figures. Okay, here also you can see students, these two figures, it is a closed figure. Okay, formed of how many line segments? 5 line segments. तो ये closed figure है जो 5 line segments से बना हुआ है. Okay, but they have the similar shape. इनके shapes देखो एक जैसे हैं, size अलग अलग है, so they are also called similar figures. So I hope you understood that two figures having same shape, their size may be different, they are called similar figures. Okay students. Now students, let us discuss regarding similar polygons. What do you mean by similar polygons? तो similar polygons जानने से पहले हम ये जान लेते हैं what do you mean by polygon. Polygons means a figure formed by, a closed figure formed by different line segments, by joining different number of line segments. A closed figure formed by 3 line segment is called a triangle. A closed figure formed by 4 line segments is called a quadrilateral. Then 5 line segments pentagon, है ना, 6 line segments से hexagon. In this way 8 line segments से octagon. So these are all polygons. Okay, ट्रायंगल से लेके ऐसे बढ़ते जाते हैं. ट्रायंगल 3 साइड वाला पॉलीगॉन है, ऐसे 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, देन हेक्सागन, देन हेप्टागन, ऑक्टागन. In this way these are all polygons. Now what do you mean by similar polygons? Similar polygons मतलब 2 polygons similar कब होते हैं? तो 2 polygons with the same number of sides. जैसे आपके पास 2 पॉलीगॉन है, एक क्वाड्रिलेटरल, उसकी बाजू में दूसरा क्वाड्रिलेटरल. ओके, दे आर सेड टू बी सिमिलर. उन दोनों को सिमिलर कब बोलेंगे? 2 polygons with the same number of sides are said to be similar if their corresponding angles are equal. अगर उनके corresponding angles क्या है? Equal है, and their corresponding sides are in same proportion. Their corresponding sides are in proportion. 2 polygons को हम सिमिलर तब बोलते हैं जब उनके corresponding angles equal होने चाहिए. उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज है वो सेम होने चाहिए. देन दे आर सेड टू बी सिमिलर पॉलीगॉन्स. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, once we discussed regarding similar figures and similar polygons, let us discuss our exercise 6.1, which is all made up of objective questions. Okay, once again let me remind you what do you mean by similar figures.
द फिगर्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज, दे मे बी इन डिफरेंट इन साइज, दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो अपना एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 जो है वो क्या है, ब्लैंक से। ओके, तो फर्स्ट ब्लैंक इज ऑल सर्कल्स आर डैश, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। वाई सिमिलर? बिकॉज ऑल सर्कल्स आर सिमिलर इन शेप, सब सर्कुलर शेप के होते हैं, सो दे आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट कब होता? जब सारे सर्कल्स का रेडियस सेम होता। अगर हर सर्कल 3 सेंटीमीटर का रेडियस का बना है तो वो सारे 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट यहाँ पर तो रेडियस की कोई बात ही नहीं हो रही है। सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बिकॉज सर्कल का शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सो दे आर सिमिलर बिकॉज देयर शेप इज सेम। Then second, all squares are similar. All squares are similar because their shapes are same, so they are similar. Then all dashed triangles are similar. All equilateral triangles are similar. Why equilateral triangles are similar? Because अगर कोई भी दो equilateral triangle ले लो तो वो equilateral triangle के तीनों sides क्या होते हैं, same होते हैं, and even the angles are congruent. Okay, so they are similar. Now fourth blank, two polygons. ये अपने अभी जो थियरी देखी थी अपन ने, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। दो पॉलीगॉन्स को हम सिमिलर कब बोलते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पहले ब्लैंक में आएगा इक्वल और दूसरे ब्लैंक में आएगा प्रोपोर्शनल। सो इन दिस वे वी फिनिश द क्वेश्चन 1 ब्लैंक्स। नाउ क्वेश्चन 2, give two examples of pair of similar figures. सिमिलर फिगर्स के पेयर का दो एग्जाम्पल्स दो। तो अपना एक एग्जाम्पल क्या है, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स, कोई भी दो सर्कल उठाओ सिमिलर फिगर है। एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स, और एनी टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर फिगर्स। ओके, एनी टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर फिगर्स। So we can give many examples of any two similar figures because they are similar in shape. Now let us give examples of non-similar figures. आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? बिफोर आई विल शो यू द सोल्यूशन, लेट अस डिस्कस नॉन सिमिलर फिगर्स के क्या एग्जाम्पल देंगे। एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर। अ ट्राइंगल एंड स्क्वायर आर नॉन सिमिलर फिगर्स। वाई? बिकॉज दे आर नॉट सेम इन शेप, उनका शेप सेम नहीं है। ट्राइंगल के 3 साइड, स्क्वायर का 4 साइड, सो दे आर नॉन सिमिलर फिगर्स। Similarly we can give a square and a rectangle. Square and rectangle are different in shapes, so they are non-similar figures. इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन कि नॉन सिमिलर फिगर्स का क्या एग्जाम्पल है। तो अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल आर नॉन सिमिलर फिगर्स, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड अ स्केलिन ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के तीनों साइड सेम होते हैं और स्केलिन ट्राइंगल के तीनों साइड अलग अलग मेजर के होते हैं, तो दे आर नॉन सिमिलर फिगर्स। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 टेक्स्ट बुक में देखो स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हम अगर हम शेप में ही देख ले तो क्या ये सिमिलर है? क्या शेप से ही अलग अलग लग रहे हैं। ओके, लेकिन हमको खाली ऐसा नहीं बोलने का कि शेप सेम नहीं है सो दे आर नॉट सिमिलर। हमको क्या बताने का, सबसे पहले देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर एंगल एस को देखे और एंगल डी को देखे तो एंगल डी इज़ 90 डिग्री बट एंगल एस इज़ नॉट 90 डिग्री, तो पहला एंगल ही मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा सिमिलर फिगर्स के लिए, सिमिलर पॉलीगॉन के लिए क्या कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। मतलब एंगल एस और एंगल डी सेम होना चाहिए, एंगल आर और एंगल सी सेम होना चाहिए, एंगल पी और एंगल ए सेम होना चाहिए, एंगल क्यू और एंगल बी सेम होना चाहिए। सामने वाले एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है। एंगल डी इज़ 90 डिग्री एंड एंगल एस इज़ नॉट 90 डिग्री, सो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, इवन द साइड्स आर इन नॉट प्रोपोर्शन, सो द फिगर्स आर नॉट सिमिलर। हम खाली एंगल का ही रीज़न दे सकते हैं, सिंस द एंगल्स आर नॉट इक्वल द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ओके, तो हमको खाली बताने का कि सिमिलर है कि नहीं है, तो फिगर्स आर नॉट सिमिलर। शेप से ही नहीं लग रहे लेकिन रीज़न भी दे दिया, सिंस द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल सो द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वी फिनिश आवर एक्सरसाइज 6.1 जो खाली ऑब्जेक्टिव से बना हुआ था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द मेन टॉपिक of the chapter, that is similarity of triangles. Okay, when are the two triangles said to be similar? दो triangles को similar कब बोलते हैं? When their corresponding angles are equal, उनके corresponding angles equal होने चाहिए, and the corresponding sides are in proportion, मतलब same ratio में होने चाहिए corresponding sides.
then only they are said to be similar triangles. जैसे for example we have a triangle ABC and a triangle DEF. Once again students, we are taking two triangles ABC and triangle DEF. ये दोनों triangles similar triangles कब कहलाएंगे? When their corresponding angles are equal. मतलब angle A should be equal to angle D, angle B should be equal to angle E and angle C should be equal to angle F. अपने सामने वाला जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल बी एंड एंगल ई इज इक्वल एंड एंगल सी एंड एंगल एफ आर इक्वल. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. नाउ व्हाट डू मीन बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन? मतलब साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए. मतलब पहले साइड का रेशियो ले लेते हैं, दोनों ट्राइंगल का पहला साइड ए बी अपॉन डी ई. ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू should be equal to BC upon EF and that should be equal to AC upon DF. ये जो तीनों रेशियोज है, फर्स्ट रेशियो इज दोनों का पहला साइड AB upon DE, सेकेंड रेशियो इज BC upon EF एंड द थर्ड रेशियो इज AC upon DF. तो तीनों रेशियोज जो है दे शुड बी इक्वल, okay, and the corresponding angle should be equal. In this way, if both the conditions are satisfied, then we can say that both the triangles are similar triangles. दोनों triangles कैसे हैं? Similar triangles है, okay, और इसको हम बोलते हैं similar, and this phenomenon is known as what? Similarity of triangles. और दो similar triangles को लिखते कैसे हैं? Triangle ABC और बीच में similar के लिए खाली S वाला सिंबल हो, नहीं उल्टा S, खाली एक एस बनेगा और कुछ नहीं, नीचे कोई दो डैश नहीं आएंगे. दो डैश अगर नीचे आ गया तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, एक खाली एस. तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. दिस इज द सिंबल फॉर शोइंग द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, व्हेन आर द टू ट्राइंगल्स सेड टू बी सिमिलर ट्राइंगल्स? व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तीनों रेशियोज. Okay, then both the triangles are said to be similar triangles. I hope you understood the definition of similar triangles. Okay students, now students we are going to start with the very important theorem, that is theorem 6.1. okay, this theorem has been asked a number of times in board examination. बोर्ड में बहुत बार पूछा गया ये theorem है. This theorem is known as basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem, and this theorem was given by mathematician Thales, so it is also known as Thales theorem. एग्जाम में ऐसे भी आता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट के साथ थ्योरम लर्न करने का. और इट कैन बी ऑल्सो आस्क्ड स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT बोलते हैं, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो उसका स्टेटमेंट भी देने का और पूरा प्रूफ भी देने का. स्टूडेंट्स, दिस थ्योरम इज ऑन पेज नंबर 124 ऑफ योर NCERT मैथ्स टेक्स्ट बुक. आपके जो मैथ्स टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 124 में पूरे पेज में ये थ्योरम है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थ्योरम. ओके, यू हैव टू लर्न दैट थ्योरम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और यू कैन लर्न फ्रॉम हियर ऑल्सो. Okay students, so let us start with this theorem, basic proportionality theorem or Thales theorem. First of all students, let us understand the statement of this theorem. आपको स्टेटमेंट भी लर्न करने का है. अगर ऐसा एग्जाम में आ गया स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट भी देने का है और प्रूफ भी देने का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब क्या है कि सपोज अ ट्राइंगल इज गिवन टू यू, एक ट्राइंगल ABC दिया है. यू कैन सी द फर्स्ट फिगर ट्राइंगल ABC. आपने क्या किया, एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो BC को पैरेलल है. ओके, और वो लाइन सेगमेंट जो है AB और AC को D और E पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. मीन्स DE इज पैरेलल टू BC, DE is parallel to BC. This is your given. आपका given क्या है, इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC. ये जो DE जो बीच का लाइन सेगमेंट है वो BC को क्या है, पैरेलल है. ओके, दैट इज योर गिवन. एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के कारण आजू बाजू के जो रेशियोज है, लेफ्ट साइड में साइड का क्या रेशियो है, AD अपॉन DB, और राइट साइड में क्या है, AE अपॉन EC. दिस बोथ रेशियो शुड बी इक्वल. AD upon DB should be equal to AE upon EC. I hope you understood the statement. If a line is drawn parallel to one side of a triangle,
तो कौन सा लाइन ड्रॉ किया हमने, डी ई पैरेलल टू बी सी, ओके बी सी को पैरेलल है, एंड इट इज़ इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन 2 पॉइंट्स डी और ई, है ना। तो अदर 2 साइड्स, ये जो 2 साइड्स है ए बी और ए सी, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो उनके जो 2 रेशियोज बने वो इक्वल है, मतलब ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सो दिस इज़ योर स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योर गिवन, गिवन इज इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है, एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों रेशियो इक्वल है, हमको प्रूव करना है। नाउ फॉर दिस प्रूफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, इस ट्राइंगल के अंदर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड फिगर है वो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सेम फिगर दिया हुआ है, इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दिस सेम फिगर इज गिवन, ओके। तो व्हाट कंस्ट्रक्शन वी आर डूइंग, जॉइन बी ई एंड सी डी, आप देख सकते हो बी और ई को डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया हुआ है, एंड सी एंड डी हैव बीन ज्वाइंड विद द डॉटेड लाइन्स, ओके बी ई एंड सी डी वी हैव ज्वाइंड, ओके, एंड वी आर टेकिंग 2 परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, कैन यू सी डी एम, एम के इधर राइट एंगल बन गया, मतलब डी एम क्या है, परपेंडिकुलर है पूरे ए सी के ऊपर, एंड ई एन इज परपेंडिकुलर टू फुल ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो वी हैव ड्रॉन 2 परपेंडिकुलर्स, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन विच वी आर टेकिंग। तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन हमने लिया, एक हमने नीचे की तरफ 2 लाइन सेगमेंट्स जोड़े बी ई एंड सी डी, ओके, और ऊपर की तरफ हमने 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हमने, डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। सो बाई दिस लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। हमको प्रूव क्या करना है, वापस से देख लो स्टूडेंट्स, हमको ये दोनों रेशियोज इक्वल है वो प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ओके। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, देन फिगर गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ दिस चैप्टर, ओके दिस थियरम, सॉरी स्टूडेंट्स, आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने ये पिक यूज़ किया है, ओके। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, पहले वाले साइड में हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, कैन यू सी ट्राइंगल ए डी ई, जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ए डी ई, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होता है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू हाइट, ओके। तो हाफ ले लिया हमने इंटू बेस, ट्राइंगल ए डी ई में बेस क्या ले रहे हैं हम लोग, ए डी, कौन सा बेस ले रहे हैं, ए डी, और इनटू उसके ऊपर कौन सा हाइट गिरा है, कौन सा ऑल्टीट्यूड गिरा है, ई एन, तो हाफ ए डी इंटू ई एन। स्टूडेंट्स, हम जानते ही है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमने 9th में किया हुआ है। तो हम लोग ए डी ई ग्रीन कलर का ट्राइंगल ले रहे हैं, ओके। तो वो हो गया हाफ इंटू बेस, हम क्या ले रहे हैं, ए डी की तरफ, तो ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, जो ए डी पे गिर रहा है, कौन सा ऑल्टीट्यूड गिर रहा है, ई एन, सो इट इज़ हाफ ए डी इंटू ई एन, इसको 1 नंबर दे दिया, ओके। अब उसी के नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, कैन यू सी बी डी ई, ब्लू कलर से पर्पल कलर कवर हो रहा है, बी डी ई, ओके, ब्लू कलर से पर्पल कलर तक, ओके, दैट इज ट्राइंगल बी डी ई, सेम हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ बेस, बेस कौन सा ले रहे हैं, डी बी, डी बी। नाउ व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड, दिस सेम ई एन ऑल्टीट्यूड इज वर्किंग फॉर ए डी ऑल्सो एंड डी बी ऑल्सो, क्योंकि ई एन जो ऑल्टीट्यूड है पूरा ए बी के ऊपर है, पूरा ए बी के ऊपर, तो वो ए डी के लिए भी वही ऑल्टीट्यूड काम करेगा और डी बी के लिए भी वही ऑल्टीट्यूड काम करेगा, अंडरस्टूड। दिस सेम ई एन ऑल्टीट्यूड, दिस सेम ई एन हाइट विल बी वर्किंग फॉर ए डी ऑल्सो एंड डी बी ऑल्सो। तो अपना एरिया ऑफ बी डी ई क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस, बेस यू विल टेक डी बी बट हाइट यू विल टेक ई एन, तो दिस इज नंबर 2, ओके। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 एंड 2 में रिपीट करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ग्रीन वाले में हाफ बेस हमने लिया ए डी और उसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ई एन। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या लिया हमने, डी बी इंटू हाइट, यानी ऑल्टीट्यूड कौन सा लेंगे, वही ई एन वाला ही लेंगे। नाउ वी आर डिवाइडिंग बोथ दिस इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो एल एच एस डिवाइड हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ओके, इक्वल टू दोनों का आर एच एस भी डिवाइड हो जाएगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस अपॉन आर एच एस। अब जब आर एच एस में आप देखो तो दोनों तरफ से हाफ ऑफ कट गया, ऊपर नीचे हाफ ऑफ कट एंड ई एन कट, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ए डी अपॉन डी बी। So what you got the result? You got area upon ADE upon area upon BDE equal to AD upon DB. इसको हमने A नंबर दे दिया, रिजल्ट A, ओके। ये पूरा हम फर्स्ट साइड किया हमने। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड साइड,
सेकेंड साइड पे आ जाते हैं स्टार्टिंग से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर से ADE लेते ग्रीन वाला ट्राइंगल, ओके। बट इस बार हम क्या लेते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट में हाफ बेस क्या लेते हैं, AE की तरफ। पहले हमने बेस क्या लिया था, AD की तरफ, अब इस बार बेस ले लेते हैं AE की तरफ। सो इट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट, सो हाफ इनटू बेस वी आर टेकिंग AE, इनटू हाइट वी आर टेकिंग DM, है ना। इस बार AE के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, DM, सो इट इज़ हाफ AE इनटू DM। नाउ टेक अनदर ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल DEC, देख रहे हैं, लाइट पर्पल से लेकर डार्क पर्पल तक DEC, ओके। लाइट पर्पल से लेकर डार्क पर्पल तक पूरा DEC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस क्या लेंगे, EC बेस है, लेकिन हाइट वही काम करेगा, कौन सा, DM, क्योंकि वो पूरा AC के ऊपर वही हाइट है, भले AE हो या EC हो, हाइट कौन सा काम करेगा, DM। सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, हमको इक्वेशन 3 और 4 कैसे मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो हाफ बेस वी आर टेकिंग AE, सो अल्टीट्यूड विल बी DM, तो हाफ AE इनटू DM। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC में हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस वी आर टेकिंग EC, तो हाइट वही रहेगा DM, ओके। तो इन दिस वे वी गॉट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। नाउ डिवाइडिंग बोथ दिस इक्वेशंस, तो LHS डिवाइड होगा और RHS डिवाइड होगा। सो यू गॉट एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल टू हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM, हाफ ऑफ कट DM कट, यू गॉट AE अपॉन EC। दिस इज़ योर रिजल्ट B। तो हमको रिजल्ट A और रिजल्ट B मिल गया। अब रिजल्ट A और रिजल्ट B दोनों का LHS देखो, दोनों का LHS जो ट्राइंगल के नाम जहाँ पर है, उन दोनों ट्राइंगल्स के रेशियोज़ में ऊपर न्यूमरेटर दोनों में सेम ही है, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ ADE, दोनों तरफ ऊपर वाला सेम है, खाली नीचे वाला अलग अलग दिख रहा है। तो हम पहले दोनों नीचे वाले के बारे में बात करते हैं, BDE एंड DEC। आप अगर ट्राइंगल में देखो ना, तो BDE मतलब क्या है, ब्लू से लेकर डार्क पर्पल की तरफ, और DEC मतलब क्या है, लाइट पर्पल से डार्क पर्पल की तरफ। ये दोनों ट्राइंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो वो नेक्स्ट पिक में डिस्कस करेंगे। Now see here, now triangle BDE and triangle DEC, BDE and DEC, they are on the same base DE। ये दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन बेस क्या है, DE है। BDE में भी DE आता है और DEC में भी DE आता है। सो दे आर ऑन द सेम बेस DE एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। ये दो पैरेलल लाइन्स के बीच के ट्राइंगल है। कौन से दो पैरेलल लाइन्स, BC एंड DE। तो हमने 9th में एक थियरम किया था स्टूडेंट्स कि इफ़ टू ट्राइंगल्स हैव द सेम बेस, तो यहाँ पे सेम बेस क्या है, DE, एंड दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। तो कौन से दो पैरेलल लाइन्स के बीच में दोनों ट्राइंगल है, BC एंड DE। देन द एरिया ऑफ बोथ दिस ट्राइंगल्स आर सेम, तो दोनों की एरिया क्या है, सेम होगी, ओके। तो मतलब एरिया ऑफ BDE एंड DEC आर सेम। तो दोनों की अगर एरिया सेम है, तो ये जो रेशियोज़ है ADE अपॉन BDE दैट विल बी इक्वल टू ADE अपॉन DEC, ये रेशियोज़ भी इक्वल हो जाएंगे। फिर से एक बार स्टूडेंट्स मैं पहले वाला पिक दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जो अपना लास्ट में रिजल्ट है ना, A और B, इन दोनों के LHS की बात करते हैं, ओके। इसका न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही था LHS में, बस डिनोमिनेटर में दो ट्राइंगल दिख रहे थे, और हमने वो भी प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है, सेम है, BDE एंड DEC, इन दोनों की एरिया भी सेम है, ये हमने प्रूव कर दिया। मतलब दोनों का LHS एग्जैक्टली सेम है, ओके। ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू ADE अपॉन DEC। द LHS ऑफ बोथ द रिजल्ट A एंड B आर सेम। अगर दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, सेम होगा। सो देयरफॉर AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC। यही चीज़ अभी हम नेक्स्ट वाले फिगर में देख रहे हैं, ओके। हमने क्या बोला कि ये दोनों ट्राइंगल है, इनका सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में है, तो उन दोनों की एरिया सेम। अगर दोनों के एरिया सेम, तो वो दो जो रिजल्ट थे A और B, उनका LHS सेम हो गया, तो उनका RHS भी सेम होगा। सो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज द रिजल्ट विच वी नीडेड टू प्रूव। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन थियरम 6.1 क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में अगर बीच में अगर एक लाइन पैरेलल बना दो थर्ड साइड के साथ, तो AD अपॉन DB क्या हो जाएगा, इक्वल टू AE अपॉन EC। लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो है और राइट हैंड साइड की तरफ का रेशियो दोनों सेम हो जाएंगे, ओके। दिस इज योर थियरम 6.1। दिस इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, BPT, और थेल्स थियरम, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। इट इज़ ऑन पेज नंबर 124 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यू हैव टू लर्न दिस थियरम फॉर एग्जाम, ओके स्टूडेंट्स।
नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मतलब क्या? हमने जो थ्योरम 6.1 किया ना, उसका उल्टा है 6.2 थ्योरम। इट इज़ ऑन पेज नंबर 126। इसका प्रूफ हमको नहीं करना है, लेकिन स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ये 6.1 थ्योरम का रिवर्स थ्योरम है, उसका कॉन्वर्स है। 6.1 थ्योरम हमने क्या देखा था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो साइड्स के रेशियो सेम होंगे। इसमें उल्टा कि अगर साइड्स के रेशियो सेम है तो लाइंस विल बी पैरेलल। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब एक लाइन ने दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया तो वो लाइन और थर्ड साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। लेट मी शो यू द फिगर। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस फिगर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक ट्राइंगल ए बी सी है, ओके, और एक लाइन है जिसने ए बी को ई पे और ए एफ को ए सी को एफ पे इंटरसेक्ट किया है, और सामने से ये दिया है कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। इफ़ दिस रेशियोज आर इक्वल, अगर ये दोनों तरफ के साइड्स के रेशियोज अगर इक्वल है तो लाइन्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। देन ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। और प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो 6.1 था उसका मतलब क्या था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो साइड्स सेम रेशियोज में होंगे। अब ये उल्टा कि अगर ये साइड्स के रेशियोज अगर इक्वल है देन द लाइंस विल बी पैरेलल। ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, that if AE upon EB equal to AF upon FC, if the ratios are equal then this line EF is parallel to BC. ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरम 6.1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका प्रूफ लर्न करना है। एंड थ्योरम 6.2 इज़ कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ हमको नहीं लर्न करना है, बट ये आपका डायग्राम उसके अंदर का मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज 6.2। ओके, 6.2 का क्वेश्चन 1 and 2 दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं 1 मार्क में। सो आई एम टीचिंग यू थ्रू दिस सॉल्व्ड पिक्स। ये मैंने सॉल्व करके इसके पिक्स लेके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 में क्या बोला है कि अ ट्राइंगल ए बी सी इज़ गिवन। एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है और डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, इट इज़ गिवन। और आपको साइड्स के मेजरमेंट्स भी दे दिए। ए डी इज़ गिवन एज 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इज़ गिवन एज 3 सेंटीमीटर, और इस तरफ ए ई दिया है 1 सेंटीमीटर। तो आपको ई सी फाइंड करना है, ये फोर्थ वाला फाइंड करना है। आउट ऑफ द 4 मेजर्स 3 मेजर्स आर गिवन, ए डी, डी बी एंड ए ई, और आपको ई सी फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, यूजिंग व्हाट? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, आपको दिया हुआ है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो साइड्स क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। सो देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लेफ्ट हैंड साइड में है ए डी अपॉन डी बी और राइट हैंड साइड में ए ई अपॉन ई सी। दिस रेशियो शुड बी इक्वल, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। ए डी कितना 1.5 अपॉन डी बी कितना 3 इक्वल टू ए ई कितना 1 अपॉन ई सी कितना है फाइंड करना है। ओके, नाउ इफ़ यू वांट ई सी, तो ई सी को क्रॉस कर दो ऊपर की तरफ, तो 1.5 आएगा नीचे और 3 को यहाँ पे आर एच एस में क्रॉस कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वी हैव सेंट ई सी देयर एंड 1.5 ई सी की जगह पे नीचे आ गया, और इधर से नीचे से 3 1 के पास क्रॉस हो गया। नाउ नीचे का पॉइंट हटाओ तो ऊपर कितना आएगा? 10। वंस वी रिमूव द पॉइंट फ्रॉम 1.5 तो इट विल बी 10 ओवर द मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ऊपर हो गया 3 10s are 30 अपॉन 15, तो 15 2s are 30। सो ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। वेरी इजी सम, खाली रेशियोज इक्वल है तो रेशियोज को इक्वल लगा के तीनों की वैल्यू पुट कर दी तो अपन को ई सी आ गया 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस सिमिलरली सेकेंड सम। इन द सेकेंड सम क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अ ट्राइंगल ए बी सी इज़ गिवन एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, और आपको क्या दिया है? ए डी अननोन है, पहला वाले अननोन है, लेकिन डी बी दिया है 7.2, फिर इस तरफ से ए ई दिया है 1.8 एंड ई सी इज़ 5.4। हमेशा आउट ऑफ द 4 मेजरमेंट्स 3 विल बी गिवन। तो यहाँ पे 3 मेजरमेंट्स दिए हुए, कौन कौन से? डी बी, ए ई एंड ई सी। सो वी नो दैट सिंस डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये तो अपन को क्वेश्चन में दिया है कि दोनों साइड्स पैरेलल है, तो देयरफॉर द रेशियोज आर इक्वल। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। रेशियोज इक्वल है तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। ए डी की जगह ए डी, क्योंकि ए डी हमको फाइंड करना है, अपॉन डी बी। डी बी इज़ हाउ मच? 7.2 इक्वल टू ए ई इज़ हाउ मच? 1.8 अपॉन ई सी कितना है? 5.4। ऑल द मेजरमेंट्स यू कैन सी फ्रॉम द फिगर।
ओके सारे मेजरमेंट्स पुट कर दिए, बस सिंपली 7.2 को मैंने वहाँ पे क्रॉस कर दिया 1.8 के पास. सो देयरफॉर AD इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4. नाउ स्टूडेंट्स आप कटिंग आराम से कर सकते हो. आई एम नॉट शोइंग द कटिंग, देयरफॉर AD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स. वेरी वेरी इजी सम. ओके सिर्फ रेशियोज को इक्वल रख के सबकी वैल्यू पुट करो तो आराम से आप AD निकाल सकते हो. सो इन क्वेश्चन 1 देर आर 2 सम्स जिसमें आपको साइड्स लाइंस पैरेलल दिए हैं, तो हमने साइड्स को सेम रेशियो में लगा दिया और हमने सम कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स इफ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, in question number 2 what they are saying, E and F are the points on the sides PQ and PR. तो आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल PQR है, उसके PQ की तरफ E पॉइंट है और PR की तरफ F पॉइंट है. ओके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमको पहला केस है मेजरमेंट दिया हुआ है, चारों मेजरमेंट दे दिया है. वी हैव टू चेक वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट. मतलब ये जो लाइन्स है EF और QR दोनों पैरेलल है कि नहीं हमको चेक करना है. तो स्टूडेंट्स हियर वी विल यूज कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. हमने कॉन्वर्स थ्योरम में क्या देखा था कि अगर रेशियोज इक्वल है तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे. तो हम पहले दोनों रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, लेफ्ट वाला रेशियो और राइट वाला रेशियो. तो लेफ्ट वाला रेशियो क्या है हियर, PE अपॉन EQ. PE अपॉन EQ ये अपना लेफ्ट वाला रेशियो. तो PE की वैल्यू 3.9 अपॉन EQ कितना है 3. तो ये एग्जैक्टली 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 कट गया तो 1.3 आ गया. तो फर्स्ट रेशियो हमको कितना मिला 1.3. नाउ इस तरफ राइट हैंड साइड का रेशियो PF अपॉन FR 3.6 अपॉन 2.4. तो पहले तो पॉइंट कट और 12 का टेबल लगेगा. 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24. तो 3 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2 मीन्स 1.5. सो द लेफ्ट हैंड साइड रेशियो एंड राइट हैंड साइड रेशियोज में अलग अलग वैल्यूज़ मिली. लेफ्ट हैंड साइड रेशियो PE अपॉन EQ इज़ 1.3 and the right hand side ratio PF upon FR is 1.5. So here PE upon EQ is not equal to PF upon FR. और ratios अगर equal नहीं है तो ये lines भी parallel नहीं होंगे. So therefore EF is not parallel to QR. EF और QR parallel नहीं है. Since the ratios are not equal, EF is not parallel to QR. Okay. Now let us discuss the another sum of this question. Second sum में भी वही triangle PQR and all four measurements PE equal to 4 centimeter, then EQ equal to 4.5 centimeter, PF equal to 8 centimeter and FR equal to 9 centimeter. ओके तो यहाँ पे भी हमको प्रूव करने का है कि EF और QR पैरेलल है या नहीं है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड रेशियो PE अपॉन EQ. तो PE अपॉन EQ इज़ 4 अपॉन 4.5. 4 अपॉन 4.5. तो पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ गया 10, नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10. Now let us cut with the 5 table. 5 2s are 10 and 5 9s are 45. 5 2s are 10 and नीचे 5 9s are 45. So what you got, ऊपर कितना है 4 into 2 8 upon 9. So the first left hand side ratio is PE upon EQ equal to 8 upon 9. Now let us come to the right hand side ratio. So right hand side ratio is PF upon FR. Okay, PF upon FR की वैल्यू ही 8 upon 9 है. तो दोनों रेशियोज तो सेम ही आ गए. देयरफॉर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. दे बोथ आर 8 अपॉन 9. तो सिंस द रेशियोज आर इक्वल, दोनों तरफ के रेशियोज इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ द रेशियोज आर इक्वल देन द लाइन्स विल बी पैरेलल. सो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR. अगर यही रेशियोज इक्वल नहीं आते दोनों तरफ के तो लाइन्स पैरेलल नहीं होते. सिंस द रेशियोज आर इक्वल सो द लाइन्स आर पैरेलल. ओके स्टूडेंट्स, so students by this we end our today's session. Students, in today's session we studied regarding what do you mean by similar figures, और फिर हमने exercise 6.1 उसके बेसिस पे किया. Then we saw the definition of similar triangles, similarity of triangles. Then we saw very very important theorem, basic proportionality theorem और Thales theorem. उसका पूरा proof आपको लर्न करना है. Then we saw the statement of converse of basic proportionality theorem. और फिर एक्सरसाइज 6.12 में क्वेश्चन 1 and 2 बोथ आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विच वी सॉल्व हियर नाउ. ओके इन द कमिंग वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी ऑन द बोर्ड. मैं बोर्ड पे आपको सम्स, क्योंकि ये सारे प्रूव दैट्स है, द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ प्रूव दैट्स, क्वेश्चन 3 to क्वेश्चन 10. वो इस तरह से एक्सप्लेनेशन में नहीं होगा. फॉर दैट आई हैव टू कम ऑन द बोर्ड, आई विल टीच यू ऑन द बोर्ड. ओके स्टूडेंट्स, गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थियरम्स ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स.